Hi, good evening. I am Trilochan Sahu, Department Mathematics from Prayas Higher Secondary School. Welcome you all to the Concept Plus online class. Previous class रे आमे इक्वेशन ऑफ लाइन ऊपर पढ़िथिले. इक्वेशन ऑफ लाइन माने गोटे लाइन रो इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म रे आमे केमती काढिबा. आमे दीटा फॉर्म विषय रे पढ़िथिले. गोटे होची पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गोटे तमरो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. दीटा लाइन रो इक्वेशन विषय रे पढ़िथिले. आज आउ किछि इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म ऊपर आमे डिस्कशन करिबा वन बाय वन. फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 points form means when 2 points are given on a line, 2 points are given. The equation of a line passing through the point A x1 y1 and B x2 y2 is given by y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 whole into x minus x1. एटा केमती डिराइव हैला देखो. फर्स्ट क्लास रे जो पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़िथिले, स्लोप जगह रे in place of slope we can write y2 minus y1 by x2 minus x1. We get this formula. तो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म थिला y minus y1 equal to m into x minus x1. m जगह रे in place of m we can write y2 minus y1 by x2 minus x1. Hence this formula can be derived from that formula. Y minus y1 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 whole into x minus x1 when 2 points are given. Then next form, equation of line in intercept form. Intercept means what? Intercept means if a line intersect x-axis at a distance a from origin, similarly it intersect y-axis at a distance b from origin. From the figure, OA equal to A and OB equal to B. That means the point A is a comma 0 and the point B is 0 comma B. That means if a line passes through A0 and 0B, we have to find the equation of the line. So let us find the equation of the line L which is passing through A0 and 0B. Suppose x1 is A, y1 is 0, x2 is 0, y2 is b. Applying the formula y minus 0 equal to b minus 0 by 0 minus a into x minus 0. Then cross multiplying we get ay equal to minus bx plus ab. bx को लेफ्ट साइड में ले आने के बाद हो जाएगा ay plus bx equal to ab. Then divide both side ab. बोथ साइड ए बी डिवाइड कर देने के बाद ए वाई बाई ए बी प्लस बी एक्स बाई ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए बी कैंसिल हो गया. इधर ए कैंसिल, बी बी कैंसिल. दैट मीन्स एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1. सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1. देन नेक्स्ट फॉर्म, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? लेट अस ए लाइन L which is at a distance of P from origin. That means if a perpendicular drawn from origin upon that line, that length is P and that perpendicular makes an angle alpha with the positive direction of x-axis. From the figure, let us OA equal to A, OB equal to B and OM perpendicular to AB. The length of OM equal to P and the angle made by OM with x-axis, that is alpha. So from the triangle OAM triangle means a cos alpha equal to P by A. That means A equal to P by cos alpha. Similarly, in the triangle OBM, sin alpha equal to P by B. So B equal to P by sin alpha. पुटिंग दिस टू वैल्यू, मतलब ए और बी दोनों का वैल्यू प्रीवियस इक्वेशन में अगर हम पुटिंग करेंगे, प्रीवियस इक्वेशन मेरा क्या था? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 था. उसमें ए के जगह पी बाई कॉस अल्फा, बी के जगह पी बाई साइन अल्फा अगर पुटिंग करेंगे, ये हो जाएगा एक्स बाय पी बाई कॉस अल्फा प्लस वाई बाय पी बाई साइन अल्फा इक्वल टू 1. दैट मीन्स कॉस अल्फा और साइन अल्फा ऊपर जाने के बाद एक्स कॉस अल्फा बाई पी plus y sin alpha by p equal to 1. So that means x cos alpha plus y sin alpha equal to p हो गया. इक्वल टू क्या हो गया? p.
x cos alpha plus y sin alpha equal to p हो गया, where p is the length of perpendicular from origin and alpha is the angle made by the perpendicular with x axis. तो ये हो गया मेरा 5 टाइप का इक्वेशन, जिसमें हमारा फर्स्ट हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म, देन इंटरसेप्ट फॉर्म, देन नॉर्मल फॉर्म. देन उसके ऊपर हम कुछ सॉल्व एग्जाम्पल किए हैं. सो माने क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 1 and 2, -4. There are 2 points given, A -1 1, B 2, -4. उसमें से x1 y1 हो गया -1 1, x2 y2 हो गया 2, -4. किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इक्वेशन ऑफ ए बी इज y minus y1 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. Putting that formula here, y minus 1 equal to -4 minus 1 divided by 2 minus of minus 1 into x minus of minus 1. Solving this, we get y minus 1 equal to -5 by 3 into x plus 1. Cross multiplying, we get 3 into y minus 1 equal to -5 into x plus 1. That means 3y minus 3 equal to -5x minus 5. 5x को लेफ्ट साइड में ले आओ तो 5x plus 3y plus 2, 5 को लेफ्ट साइड ले आओ plus 2 equal to 0. Hence required equation of AB is 5x plus 3y plus 2 equal to 0. Next example number 2. Find the equations of the sides of the triangle whose vertices are A is -1, 8, B is 4, -2, and C is -5, -3. So here is a triangle ABC. Here A is -1, 8, B is 4, -2, C is -5, -3. We have to find the equation of AB, BC and AC respectively. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी. तो ए बी को हम लोग ड्रॉ किए हैं. ए के जगह -1 8, बी के जगह 4, -2. यहाँ पे वही 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला डालेंगे. इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगा y - 8 y - y1 इक्वल टू y2 मीन्स -2 माइनस y1 मीन्स 8 डिवाइडेड बाय x2 - x1 मीन्स 4 -1 इंटू x -1. हेंस सॉल्व इसको करो. y - 8 इक्वल टू -10 by 5 इंटू एक्स प्लस 1. 5 से 10 कैंसिल हो गया 2. सो y - 8 इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 1. हेंस y - 8 इक्वल टू -2x - 2. इसको एक तरफ ले आओ. 2x प्लस y -6 इक्वल टू 0. उसको कोई माने मैंडेटरी नहीं है एक साइड में लेना, किसी साइड में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ BC का इक्वेशन निकाला है. BC को अलग से हम ड्रॉ किए. बी के जगह 4, -2, सी के जगह -5, -3. वही सेम फार्मूला डालो. y -2 इक्वल टू -3 -2 डिवाइडेड बाय -5 -4 होल इंटू एक्स -4. सिमिलरली इसको सॉल्व करने से आएगा y + 2 इक्वल टू -3 + 2 डिवाइडेड बाय -9 इंटू एक्स -4. तो अगेन तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से -9 इंटू y + 2 इक्वल टू -1 इंटू एक्स -4. सो हेंस -9y - 18 दैट इज इक्वल टू -x + 4. उसको अगेन सॉल्व करने से x - 9y - 22 इक्वल टू 0. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ AC को अलग से ड्रॉ किए. a के जगह -1, 8, c के जगह -5, -3. उसको वही फॉर्मूला डालने से y - 8 इक्वल टू -3 - 8 डिवाइडेड बाय -5 -1 होल इंटू x -1. सो दैट मीन्स y - 8 इक्वल टू ऊपर हो गया -11 डिवाइडेड बाय -4 माइनस कैंसिल देन x + 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 4 इंटू y - 8 इक्वल टू 11 इंटू एक्स + 4. दैट मीन्स 4y - 32 इक्वल टू 11x + 11. उसको सॉल्व करने से 11x - 4y + 43 इक्वल टू 0. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स which cut off intercept on the axis whose sum and product are 1 and -6 respectively. That means
एक लाइन अगर ए एंड बी इंटरसेप्ट करता है कोऑर्डिनेट एक्सेस में, उसका सम होता है 1 एंड प्रोडक्ट होता है -6। अगर हमारा ए एंड बी आर द इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस, ए प्लस बी हो गया 1, ए बी हो गया -6। दिस इज गिवन फ्रॉम द फॉर्मूला a minus b whole square equal to a plus b whole square minus 4ab. That means a minus b whole square equal to a plus b is given 1 whole square minus 4 into ab given -6. That means a minus b whole square equal to 1 plus 24 equal to 25. That means a minus b equal to plus minus 5. हमारा दो इक्वेशन आएगा। अगर हम a माइनस बी के जगह 5 लेंगे एक इक्वेशन आएगा, a माइनस बी के जगह -5 लेंगे अनदर इक्वेशन आएगा। सो टेकिंग प्लस साइन a प्लस बी इज गिवन 1, a माइनस बी इज गिवन 5। दोनों को अगर ऐड कर देंगे प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3 हो गया। a के जगह 3 अगर बैठा देंगे कोई भी इक्वेशन में b आ जाएगा -2। सिमिलरली टेकिंग नेगेटिव साइन a प्लस बी गिवन 1, a माइनस बी हो गया -5। दोनों को ऐड कर देने से 2a इक्वल टू -4, a हो गया -2। सिमिलरली a की जगह -2 अगर कोई भी इक्वेशन में डाल देंगे तो b हो जाएगा 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन सर यहाँ पे a आ गया 3, b आ गया -2, यहाँ पे a आ गया -2, b आ गया 3। तो दो इक्वेशन आएगा x/3 प्लस y/-2 इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे x/-2 प्लस y/3 इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, find the equation of the line upon which the length of perpendicular p from origin and the angle alpha made by this perpendicular with positive direction of x-axis are p equal to 4 and alpha equal to 120। मतलब दोनों दिया गया है, p के जगह 4, अल्फा के जगह 120 बैठा देने से इक्वेशन आ जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि जो चीज़ गिवन दिया है उसी हिसाब से इक्वेशन डालना है। तो गिवन है p एंड अल्फा, हेंस इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो अल्फा के जगह 120, p के जगह 4 बैठा देने से x इंटू कॉस 120 हो गया -1 प्लस y इंटू साइन 120 हो गया √3/2 इक्वल टू 4। दैट मीन्स -x प्लस √3y इक्वल टू 8। दिस इज द इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज 7। मतलब p हो गया हमारा 7 एंड द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर इज -1। जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप हो गया -1। क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए आप लोग को। द परपेंडिकुलर का स्लोप हो गया -1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हियर हम एक तो फिगर बना है, अगर एक लाइन है उसके ऊपर OM हो गया परपेंडिकुलर, OM का लेंथ दिया है 7, OM अगर अल्फा एंगल करता है x एक्सिस के संग, उसका स्लोप मतलब tan अल्फा इज गिवन -1। दिस इज गिवन tan अल्फा हो गया -1 tan में कितना डिग्री होता है 135। तो tan अल्फा हो गया tan 135, दैट मीन्स अल्फा हो गया 135। तो अल्फा अगर 135 हो गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा हम लोग निकालेंगे। साइन अल्फा हो गया साइन 135 दैट इज 1/√2, कॉस अल्फा हो गया कॉस 135 दैट इज -1/√2, और p दिया है 7। ये सारा चीज़ अगर डाल देंगे इक्वेशन में, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p में x इंटू कॉस अल्फा हो गया -1/√2 प्लस y इंटू साइन अल्फा हो गया 1/√2 इक्वल टू 7। दैट मीन्स हमारा इक्वेशन बन गया -x प्लस y इक्वल टू 7√2। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कन्वर्ट द इक्वेशन 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 इंटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट। कोई इक्वेशन को अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले लेंगे। कांस्टेंट टर्म को राइट साइड के लेने के बाद वही कांस्टेंट को सब में डिवाइड कर देंगे, वही हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हियर द इक्वेशन इज 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकन -12 इंटू राइट साइड, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, देन डिवाइडेड बाई 12 एवरीवेयर। तो लेफ्ट साइड राइट साइड में 12 डिवाइड कर देंगे। 4x/12 प्लस 3y/12 इक्वल टू 12/12, दैट मीन्स x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। हियर द x इंटरसेप्ट हो गया 3, y इंटरसेप्ट हो गया 4। तो आज का क्लास तो यहीं ख़त्म होता है। तो अगर किसका कुछ डाउट है तो मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू।